Dear students, today we will discuss about power of a lens. Question is, what do you mean by power of a lens? What is the definition of power of a lens? Then from our earlier class, in class 10, we have studied about power of a lens and we used to say power is reciprocal of focal length. We used to say reciprocal of focal length is known as power of the lens. Right? Reciprocal of focal length is known as power of the lens. But question is this, कि why do we say power of the lens is reciprocal of focal length? क्यों कहते हैं? Today we will discuss this very thing. Today we will come over this very fact, right? We used to say converging or diverging ability of a lens is known as power of the lens. Question is this, what is the meaning of this very converging ability and diverging ability? It is well known fact to you all that a convex lens is known as converging lens. A convex lens is known as converging lens. Why? Because it converges all parallel beam of light to a single पॉइंट. यह सारे के सारे जो रेज होते हैं इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हैं, सभी को यह लेंस जो है कन्वर्ज करके एक पॉइंट पर ला देता है. दैट्स व्हाई दिस वेरी लेंस इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस. राइट? It means that a convex lens has ability to converge a ray of light. एक convex lens को लाइट रे को कन्वर्ज करने की एबिलिटी है. देखिए इसने जो है, अगर यह लेंस नहीं होता तो लाइट ऐसे सीधा भागता, लेकिन इसने जो है कन्वर्ज कर दिया टुवार्ड्स जो है प्रिंसिपल एक्सिस, इसने बेंड कर दिया, जो है एक पॉइंट पर ला दिया. दैट्स वाई दिस वेरी लेंस इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस. राइट? तो हर एक कन्वर्जिंग लेंस की और जो होती है, हर एक कन्वर्जिंग लेंस की जो कन्वर्जिंग एबिलिटी होती है दैट इज डिफरेंट. राइट? नाउ कम ओवर डाइवर्जिंग एबिलिटी. इन केस ऑफ कनकेव लेंस वी यूज टू से अ कनकेव लेंस डाइवर्जेज पैरेलल बीम ऑफ लाइट. एक कनकेव लेंस जो होता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देता है. मीन्स अगर रे पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऐसे चल रहे हैं तो ये ऐसे फैला देगा. ड्यू टू दिस वेरी रीजन अ कनकेव लेंस इज नोन एज diverging lens. It means that we can say a concave lens has diverging ability. Right? तो यह जो डाइवर्जिंग एबिलिटी विच इज पोजेड बाय ए कनकेव लेंस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कनकेव लेंस. अलग अलग कनकेव लेंस का अलग अलग डाइवर्जिंग एबिलिटी होता है. इट मीन दैट a convex lens has converging ability, a concave lens has diverging ability. Then what amount of converging ability, what amount of diverging ability is possessed by a lens, that is known as power of the lens. It means that if a lens has more converging ability, it means that has more power. क्यों मोर पावर कह देंगे? क्योंकि उसने कन्वर्ज किया है. तो अगर कोई ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब उसको कन्वर्ज करने की एबिलिटी अधिक है, उसको कन्वर्ज करने का पावर अधिक है. एंड दैट्स वाई वी यूज टू से converging ability, that we used to say convex lens has converging ability, and different convex lenses have different converging ability, whereas a concave lens has diverging ability. Then what amount of converging ability or what amount of diverging ability is possessed by a lens, that very thing is known as power of the lens. Right? We also used to define power in this manner. Degree of convergence or degree of divergence shown by a lens is known as power of a lens. अगर किसी कन्वेक्स लेंस को कन्वर्ज करने की एबिलिटी है तो कितनी कन्वर्ज करने की एबिलिटी है, व्हाट अमाउंट ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस इज विल बी शोन बाय अ कन्वेक्स लेंस.
और अगर एक कनकेव लेंस है देन व्हाट अमाउंट ऑफ डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इज शोन बाय अ कनकेव लेंस, दैट वेरी डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस shown by a lens is known as power of the lens, right? Then now come here, come over convex lens. Let us suppose it is your convex lens, right? यह एक convex lens है, हमने रे को इंसिडेंट कराया, राइट? ये क्या करेगा? यह रे को कन्वर्ज कराएगा, राइट? हमने यह पढ़ा है कि जो है इफ रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन ऑल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसने कितना से कन्वर्ज किया? इतने अमाउंट से कन्वर्ज कराया, कराया नहीं करवाया? कराया, राइट? अब जरा सा जो है, अब लेंस को थोड़ा मैं और मोटा कर दे रहा हूं, लेंस को मैं और मोटा कर दे रहा हूं, राइट? अब वही रे मैं जब इस पर इंसिडेंट कराता हूं देन व्हाट डू बी ऑब्जर्व कि और ये ज़्यादा एंगल से कन्वर्ज करा दिया, ये जो है और ज़्यादा एंगल से कन्वर्ज करा दिया। थोड़ा फिगर गंदा हो गया, वंस अगेन आई एम कमिंग ओवर द फिगर। लेट अस सपोज इट इज योर convex lens, right? It is your principal axis and let us suppose these are the rays parallel to principal axis. This ray, then this very lens will converge these rays of light. ये चलिए कन्वर्ज करा दिया। यहाँ कितना एंगल से कन्वर्ज किया? तो इतना एंगल से कन्वर्ज किया। मीन्स डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस इन टर्म ऑफ एंगल विल बी दिस, राइट? अब मैं यहाँ पर एक जो हूँ एक थिक लेंस ले रहा हूँ, राइट? वन मोर थिंग, आप ये जानते हैं कि व्हेन रेज विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट विल पास थ्रू फोकस। इसका मतलब फर्स्ट लेंस का जो है फोकल लेंथ विल बी दिस, राइट? इस सेकेंड अटेम्प्ट में हमने एक जो है थिक लेंस ले लिया है। जब थिक लेंस ले लेंगे तो हम लोग यह पढ़े हुए हैं कि अ थिक लेंस हैज लेस फोकल लेंथ। तो इसका लेस फोकल लेंथ होगा तो फोकस पॉइंट और नज़दीक होगा या नहीं होगा? और नज़दीक होगा। और वही इंसिडेंट रे अगर हम लोग जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था फर्स्ट केस में, उसी को इंसिडेंट कराएंगे देन अगेन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। जब यह फोकस से पास करेगा देन नाउ यू टेल मी व्हाट हैज़ हैपेंड टू इट्स कन्वर्जिंग एबिलिटी। नाउ कन्वर्जिंग एंगल हैज़ इंक्रीज्ड और नॉट? What does it mean? Less focal length, जरा ध्यान से देखेंगे, when focal length will be less, when lens will be thick, focal length will be less, degree of convergence will be more, and when degree of convergence will be more, with this very degree of convergence is known as power, so power will be more. It means that we can say less focal length, more convergence, more power, right? Thick lens, less focal length, more convergence, more power. See here, less focal length, more power, right? अब जरा सा मैं आ जा रहा हूँ कनकेव लेंस पर, right? See here, let us suppose it is your concave lens, it is your thin concave lens. ये इमेजिन कर लीजिए thin concave lens है, it is your principal axis and these are the rays which are parallel to principal axis, right? What will happen after reflection? These rays will diverge करेगा। तो क्या हम लोग कहते हैं? we used to say these diverging rays are appear to come from a special point known as focus, right? ये हम लोग कहते हैं। तो अगर यह डाइवर्स किया है तो कितने एंगल से डाइवर्स किया है? इतना एंगल से, राइट? बट वेन वी विल टेक अ थिक लेंस, जब हम लोग थिक लेंस लेंगे, वेन वी विल टेक थिक लेंस देन व्हाट डू वी ऑब्जर्व
कि डिग्री ऑफ जो है, जब हम लोग थिक लेंस लेंगे देन नो डाउट फोकल लेंथ विल डिक्रीज, फोकल लेंथ मेरा घट जाएगा, राइट। तो अब क्या होगा, जो वही पैरेलल रे जो है, व्हाट डू वी आर ऑब्जर्विंग है कि वही पैरेलल रे अब ज़्यादा डाइवर्स कर रहा है, और यह कह दीजिए कि फोकल लेंथ कम हो गया है, फोकस से पास होता हुआ नजर आएगा, इसका मतलब ज़्यादा एंगल से डाइवर्स करेगा और नॉट। इट मीन दैट थिक लेंस less focal length, more diverging ability, more power. More diverging ability, is known as power. More diverging ability, more power. Right? It means that we can say thick lens, we can say थिक लेंस, अगर लेंस मेरा थिक है तो फोकल लेंथ कम होगा, कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस वो ज़्यादा होगा, एंड डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस इज नोन एज पावर, मीन्स पावर ज़्यादा होगा, राइट। जरा इस पर आ जाओ, लेस फोकल लेंथ मोर पावर, लेस फोकल लेंथ मोर पावर, देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन पावर एंड फोकल लेंथ, लेस फोकल लेंथ मोर पावर, राइट। एंड वेन लेंस विल बी थीन, जब लेंस मेरा पतला होगा, हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, वेन लेंस विल बी थीन फोकल लेंथ विल बी मोर, फोकल लेंथ विल बी मोर, और जब फोकल लेंथ अधिक होगा तो जो जब कन्वर्ज करेगा तो ज़्यादा दूर पर न जा करके मिलेगा, इट मीन दैट कन्वर्जिंग एबिलिटी विल बी लेस, सिमिलरली डाइवर्जिंग एबिलिटी विल बी आल्सो लेस। और जब डाइवर्जिंग एबिलिटी कन्वर्जिंग एबिलिटी लेस है, दिस वेरी डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग एबिलिटी इज नोन एज पावर, सो पावर विल बी आल्सो लेस, मीन्स थीन लेंस मोर फोकल लेंथ, लेस कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी, लेस पावर। वंस अगेन कम ओवर दिस वेरी पॉइंट, मोर फोकल लेंथ लेस पावर, more focal length less power, means less focal length more power, more focal length less power. It means that there is inverse relation between focal length and power of the lens. There is inverse relation between focal length and power of the lens, right? See this very figure. Here you have convex lens and we have put a parallel beam of light over this very convex lens. It is well known fact to you all that convex lens is known as converging lens. देखो इसने एंगल को कन्वर्ज कर दिया ना, कन्वर्ज कर दिया डेल एंगल से कन्वर्ज किया है, एंड लेट अस सपोज दिस वेरी इंसिडेंट रे, या जो इंसिडेंट रे है वह प्रिंसिपल एक्सिस से h हाइट पर है, राइट। तो अगर यह रे कन्वर्ज किया है, रे कन्वर्ज होकर के कहाँ से पास होगा, तो यह फोकस से पास होगा। अगर फोकस से पास हो रहा है तो O और F के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, फोकल लेंथ, और नॉट, राइट। अब यहाँ पर लिसन जो है डिफिनेशन दिया गया जो है वह कि व्हाट डू यू मीन बाय पावर, यह तो हमने एक डिफिनेशन यह पढ़ा, दूसरा डिफिनेशन यह पढ़ा। नाउ कम ओवर थर्ड डिफिनेशन ऑफ पावर विच इज गिवन इन योर बुक, राइट, विच इज गिवन इन योर बुक। The power of a lens is defined as tangent of the angle. Tangent of the angle means tan theta of the angle by which it converges or diverges a beam of light falling at unit distance from the optical center. अगर आपके पास एक लेंस है, अगर आपके पास लेट अस सपोज कन्वेक्स लेंस है एंड इट इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, तो अगर वह जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट है वह h मीटर के हाइट से है ऑप्टिकल सेंटर से, या ये कह दीजिए प्रिंसिपल एक्सिस से, राइट, तब जितना एंगल से वह कन्वर्ज करेगा, जितना एंगल से वह कन्वर्ज करेगा, दैट वेरी एंगल, उस एंगल का टेन थीटा, उस एंगल का टेन थीटा इज नोन एज पावर ऑफ द लेंस। वन सेकेंड लिसन, कि अगर इफ योर पैरेलल इंसिडेंट रे
is at a distance of unit meter, unit distance from the principal axis, from the optical center, then amount of convergence or divergence, tan theta of amount of convergence or amount of divergence will be equal to पावर ऑफ द लेंस, राइट। तो अगर डेल एंगल से कन्वर्ज किया है तो ये दोनों पैरेलल होगा, इट इज योर प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट इज योर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इफ दिस एंगल इज डेल देन दिस विल बी आल्सो डेल, राइट। तो टेन थीटा क्या होगा, कम ओवर दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल पर आ जाइए, टेन थीटा क्या होगा, मीन्स टेन डेल विल बी इक्वल टू पी बाय बी, मीन्स 1 बाय दिस वेरी डिस्टेंस इज एफ, 1 बाय एफ। और यही टेन डेल जो है पावर कहलाता है, इट मीन दैट पी विल बी इक्वल टू 1 बाय एफ, राइट। सी हियर, पावर ऑफ a lens is defined as the tangent of the angle by which it converges or diverges a beam of light falling at a unit distance from the optical center. Once again see this very figure, principal axis से देखो इंसिडेंट रे को h डिस्टेंस पर दिखाया गया है। when this very h will be equal to 1 मीटर, देन जितने एंगल से कन्वर्ज करेगा उसका टेन थीटा। तो अगर डेल एंगल से कन्वर्ज कर रहा है तो यह भी एंगल डेल हो जाएगा ट्रायंगल का, एंड टेन थीटा विल बी इक्वल टू पी बाई बी, मीन्स टेन डेल विल बी इक्वल टू एच बाय एफ, टेन डेल विल बी इक्वल टू एच बाय एफ, एंड व्हेन एच विल बी इक्वल टू 1 देन इट विल बिकम टेन डेल इक्वल टू 1 by f, and this very tan of the angle which equal to power, so we will write P will be equal to tan del which will be equal to 1 by f, right. And then we used to write P equal to tan del which is equal to h by f which is equal to 1 by f. It mean that we can say P equal to 1 by f. Power of the lens is equal to reciprocal of focal length. जो हम लोग 10th में रिलेशन पढ़े थे, पावर की रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, इसी रिलेशन को पढ़े थे। देन अब मैं समझ रहा हूँ, नाउ आई एम थिंकिंग दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि व्हाई डू वी से पावर ऑफ अ लेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, राइट। We used to say reciprocal of focal length is known as power of the lens. Question is this, what is its SI unit? Then see here, P equal to 1 by F. P equal to 1 by F. Question is this, what will be unit of power? Then we can say power will have same unit as this, P will have same unit as this 1 by F. P का वही यूनिट होगा जो 1 बाई एफ का होगा, 1 का कोई यूनिट नहीं, मीन्स एफ का यूनिट मीटर। इट मीन दैट वी कैन से SI यूनिट ऑफ पावर विल बी मीटर इनवर्स, एंड दिस वेरी मीटर इनवर्स इज आल्सो नोन एज डायप्टर विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल D साइन, राइट। Now come over, we used to say focal length of convex lens is positive and P equal to 1 by F, so power will be also positive. It means that we can say in case of convex lens focal length is positive, so power will be also positive. But in case of concave lens focal length is negative, so power will be also negative, right. Question is this कि what do you mean by 1D? What do you mean by power of 1D? अभी आपने कहा डायप्टर जो है जिसका कि सिंबल कैपिटल D है, that is unit of power. Then question is this कि what do you mean by 1D? Then come here, हमने लिखा P equal to 1 by F, right. When focal length will be 1 मीटर, जरा सा ध्यान से देखेंगे, इसका यूनिट मीटर, पावर का यूनिट D, राइट। यहाँ पर भी 1 डालो, यहाँ पर भी 1 डालो, देन व्हाट वी शुड से 1 डायप्टर इज द पावर ऑफ दैट लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। 1 डायप्टर इज द पावर ऑफ दैट वेरी लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। और अगर कॉन्वेक्स लेंस होगा तो 1 मीटर होगा प्लस, सो पावर विल बी आल्सो प्लस,
So we can say 1D is the power of that convex lens whose focal length is 1 meter. Right? Or you can say 1D is the power of that lens whose focal length is plus 1 meter. Plus जब कह दिए, it means that convex lens. Right? And question is this, what will be minus 1D? What will be minus 1D? Then we can say minus 1D will be equal to 1 by minus 1 meter. Right? कैसे? तो जरा सा फिर से देखो, तुमने अभी लिखा P इक्वल टू 1 बाय एफ, इसका यूनिट मीटर, इसका यूनिट डायप्टर, इधर भी हम लोग 1 किए, यहाँ भी 1 कर दिए. यहाँ कनकेव लेंस अगर है, अगर कनकेव लेंस मीन्स माइनस 1 मीटर, तो यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस. इट मीन दैट माइनस 1D इज द पावर ऑफ दैट वेरी कनकेव लेंस व्हिच फोकल लेंथ इज माइनस 1 मीटर. राइट? या तो माइनस 1 मीटर कहिए या कनकेव लेंस कह दीजिए. Right? And then we used to say focal length of a concave lens is negative, so its power will be also negative. Right? And we can say 1D, it is power of that convex lens whose focal length is 1 meter. Whereas minus 1D is the power of that concave lens whose focal length is 1 meter. या तो that concave lens कहिए या तो that concave lens कहिए. जब concave lens नाम ले लेंगे तो यहाँ पर 1 मीटर बोलेंगे, लेकिन या केवल कह दोगे that lens कह दोगे तो यहाँ focal length minus 1 मीटर बोल देना, क्योंकि जैसा ही minus 1 बोलेंगे then that will become concave lens. Right? Now come over another topic. कि what will happen to power of lenses when they will be in direct contact. अभी तो हमने जो है एक लेंस का पावर निकाला कि ये मेरा मान लिया जाए कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका पावर कितना होगा, then it will be equal to 1 by f. Right? Question is this कि when a large number of lenses will be in contact, when a large number of lenses will be in contact, then what will be its power? इसका पावर क्या होगा? Right? That's why here topic is combination of thin lenses in contact. Combination of thin lenses in contact. तो जरा सा एक बात देखिए, तो आपने पढ़ा था जो है, 2 टॉपिक पीछे पढ़ा था, रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस. इसमें आपने क्या किया था, एक अगर लेटस इट इज योर प्रिंसिपल एक्सिस एंड हेयर इज योर पॉइंट ऑब्जेक्ट, यहाँ से रे चले थे, इससे रिफ्रैक्शन हुआ था, नॉर्मल इज दिस, और लाइट बेंड होकर के यहाँ इमेज बनाया था. बट इन केस ऑफ लेंस हमने क्या कहा था, दिस वेरी रिफ्रैक्टेड रे विच इज रिफ्रैक्टेड रे फॉर फर्स्ट सरफेस दैट विल बिकम इंसिडेंट रे फॉर सेकेंड सरफेस. राइट? इट मीन दैट इस सेकेंड सरफेस के लिए हमने पहला सरफेस का जो इमेज था उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बना दिए थे, और फिर रिफ्लेक्शन हुआ था और फाइनल इमेज यहाँ बन गया था. बना था या नहीं बना था? इट मीन दैट फॉर सेकेंड रिफ्लेक्शन image formed by first reflection acts as object and finally we get image. Likely in the same way when 2 or more lenses will be in direct contact, जब 2 या 2 से अधिक लेंस कांटेक्ट में होगा, देन व्हाट विल हैपन, लेट अस सपोज हियर इज योर ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से रे चलेगा 2 टाइम्स रिफ्लेक्शन होकर के. अब मैं 2 टाइम्स रिफ्लेक्शन नहीं कहने जाऊँगा, केवल ये कहूँगा कि रिफ्लेक्शन हुआ उसके बाद रे चल रहा है. व्हाट विल हैपन, अगर सेकेंड लेंस नहीं होता तो इमेज इसका यहाँ बनता. बट थिंक ओवर हेयर कि जब ये रे इस पर चल रही, यहाँ से आगे बढ़ा है, देन इट विल इंसिडेंट ओवर सेकेंड लेंस. और जब ये सेकेंड लेंस पर इंसिडेंट करेगा, इट मीन दैट दिस वेरी रिफ्रैक्टेड रे फॉर फर्स्ट लेंस विल एक्ट एज इंसिडेंट रे फॉर सेकेंड लेंस. फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे फॉर फर्स्ट लेंस विल एक्ट एज इंसिडेंट रे फॉर सेकेंड लेंस. मीन्स तो जब पहला का रिफ्रैक्टेड रे सेकेंड के लिए इंसिडेंट रे बन गया, इसका मतलब पहला का जो इमेज होगा दैट विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस, और फिर इससे रिफ्लेक्शन होगा और फाइनली जो इमेज बनेगा जहाँ वो बनेगा. राइट?
तो अब जरा सा देखो तो ये कन्वर्ज कराया है, ऐसे से ऐसे मोड़ा, तो जब ऐसे जाएगा और ऐसे मुड़ेगा, एंड फाइनली वी विल गेट इमेज हेयर, एंड वी यूज टू से रे यहाँ से चलते हुए ए यहाँ पर फाइनल इमेज बनाया, मीन्स फाइनल इमेज विल बी हेयर, राइट। अब इसी को मैं आ रहा हूँ, जरा सा देखो तो see here you have two lenses A and B, right? A और B दो lenses है, and let us suppose both lenses are thin lenses. Really हम लोग जो स्टडी करते हैं, जो आपका क्लास 12th का जो जितने भी टॉपिक्स हैं, दैट इज फॉर थिन लेंसेज, पतले लेंस। जो जब दो पतले लेंस होंगे तो दोनों का ऑप्टिकल सेंटर बहुत ही करीब होगा, और एक कॉमन ऑप्टिकल सेंटर लेट अस सपोज हमने P दिखा दिया है, राइट। लेट अस सपोज your object initially your object is at O, whose object distance is your U, right। अब फर्स्ट जो है इससे यहाँ से रे चलता है, फर्स्ट लेंस पर इंसिडेंट होता है और बेंड होता है। जब यहाँ सी है 8 पॉइंट ए, जब बेंडिंग हो रहा है तो यह जो रिफ्रैक्टेड रे होगा, जब अब सेकेंड रे पर जो है इंसिडेंट, सेकेंड लेंस पर इंसिडेंट होगा, इट मीन दैट दिस वेरी फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे विल एक्ट एज इंसिडेंट रे फॉर सेकेंड लेंस, राइट। अगर सेकेंड लेंस नहीं होता तो इमेज यहाँ जाकर बनता, फिर यहाँ पर से और बेंडिंग होगा और इमेज मेरा ऐसे यहाँ पर आके बन रहा है। इट मीन दैट फाइनल इमेज इज एट आई विच इज हुज पोजिशन इज V, मीन्स इमेज डिस्टेंस इज V। अब पहला जो इमेज बन रहा है उसको इमेजिन कर लीजिए V डैश और V1, राइट, V डैश और V1, लेट अस सपोज V1। तो इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U है और इसका इमेज डिस्टेंस, इमेज पोजीशन I1 है, इमेज पोजीशन इज I1 एंड इमेज डिस्टेंस इज V1, right, and this very image will act as object for second lens, and finally we get image at I, whose image position is V। It mean that we can say, इसका मतलब हम लोग यह कह सकते हैं कि जो दोनों लेंस से रिफ्लेक्शन हुआ एंड फाइनली वी आर गेटिंग इमेज एट I, right। Now come over mathematical expression। The point object O is situated at a distance U from first lens। पॉइंट ऑब्जेक्ट O जो है U डिस्टेंस से फर्स्ट लेंस के से U डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। इट्स इमेज इज फॉर्मिंग एट I1 विच इज एट ए डिस्टेंस V1 फ्रॉम द लेंस। सो फ्रॉम लेंस फार्मूला, जो हम लोग लेंस फार्मूला पढ़े थे 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F, तो पहला लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस V1 हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U रहेगा और इसका फोकल लेंथ F1 है। सो रिलेशन विल बी 1/V1 माइनस 1/U इक्वल टू 1/F1, राइट। एंड फॉर सेकेंड लेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट लेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट लेंस acts as object for the second lens, and finally we get image at V। So again by lens formula, what we should write, 1/V, 1/V means final V minus U, second lens के लिए U क्या होगा, image distance of first lens will become image object distance for second lens, so 1/V1 means 1/V minus V1 minus 1/V1 will be equal to 1 by focal length of second lens 1/F2, right। अब ये दोनों जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मान सपोज किया है आपने, दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो देखिए तो पहले वाले में 1/V1 इज विद प्लस साइन, बट इन सेकेंड 1/V1 इज विद माइनस साइन। सो व्हेन यू विल ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों कैंसिल हो जाएगा एंड योर रिलेशन विल बिकम 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2, राइट। 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2, राइट। अब जरा सा मैं आपको पीछे ले चल रहा हूं। See this very lens, it means that combination of these two lenses for this position of the object, combination of these two lenses for is forming image here, finally forming image here for this very object।
या जो दो लेंस का कॉम्बिनेशन है इस ऑब्जेक्ट के लिए फाइनल इमेज यहाँ बना रहा है, इट मीन दैट यू कैन से ऑब्जेक्ट इज हेयर एंड इमेज इज हेयर, राइट। अब मैं इन दोनों लेंस के बदले में एक लेंस ऐसा ले रहा हूँ जो इसी ऑब्जेक्ट का इमेज उसी इमेज पोजीशन पर बना दे। मीन्स सेम पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखें और उसी पोजीशन पर इमेज बना दे, और एक हमें यहाँ पर एक नया लेंस लिए हैं और ये कर दे रहा है, ये वही एक्टिविटी कर दे रहा है जो दोनों मिल करके कर रहा था। देन कैन वी से दिस लेंस इज वर्किंग इक्विवेलेंट टू दिस टू ए एंड बी। That's why we can say this very lens will be equivalent lens to both A and B. If its focal length will be f, then what we should write? 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f. We can write. और जब ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, it mean that we can say final lens or single lens will be equivalent to these two lenses. So we can say in place of both lenses, if we place a new lens which produces image at same position as produced by both lenses for same position of object, then this lens will be treated as equivalent lens, right? तो यह लेंस जो कहलाएगा इक्विवेलेंट लेंस कहलाएगा, राइट। और इसका इक्वेशन होगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाय एफ। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, LHS ऑफ बोथ आर सेम, सो वी कैन से 1 बाई एफ विल बी इक्वल टू 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2, राइट। वी कैन राइट, so from this we can say 1 by f equal to 1 by f1 plus 1 by f2। इसका मतलब अगर हमारे पास दो थिन लेंसेस कांटेक्ट में हैं तो उसके बदले में एक तीसरा लेंस हम लोग ऐसा डालें जो कि वह दोनों के बदले में अकेले वही फंक्शन कर दे जो दोनों मिलकर के कर रहा हो। इट मीन दैट वी कैन से दैट वेरी लेंस विल बी इक्विवेलेंट टू बोथ लेंसेस एंड फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंस will be equal to 1 by f equal to 1 by f1 plus 1 by f2, right। अगर ऐसे तीन लेंस होते तब तो फिर मेरा यहाँ पर जो है यहाँ पर एक रिलेशन और बढ़ता, यहाँ पर v1 और फाइनल यहाँ जो v ले रहे हैं इसको v2 कर देते और फिर v2 माइनस 1 by v माइनस v2 लिखते इक्वल टू 1 by f3। और इस तरह से चौथा लेंस भी हो सकता था, पांचवा भी लेंस हो सकता था। इसी तरह से अल्टीमेट मेरा फॉर्मूला यही बनेगा जब सबको ऐड करेंगे तब, और नॉट। एंड देन वी यूज टू से सिमिलरली व्हेन n thin lenses will be in contact having focal lengths f1, f2 and f3, their equivalent focal length will be 1 by f equal to 1 by f1 plus 1 by f2 plus 1 by f3 dot 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 dot। And we know that power is reciprocal of focal length, so what we should write? Equivalent power of the lens, equivalent power of equivalent lens will be equal to p1 plus p2 plus p3, because 1 by f equal to p, 1 by f1 equal to p1, 1 by f2 equal to p2. It means that equivalent power will be equal to sum of power of constituent lenses, right? Now here focal length or power may be positive। अगर सारे के सारे कॉन्वेक्स लेंस होंगे then no doubt power of each and every lenses will be positive, so final power will be also positive, right। और फोकल लेंथ के केस में अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो सारे के सारे फोकल लेंथ पॉजिटिव होंगे, सो फोकल लेंथ विल बी आल्सो पॉजिटिव। बट when all lenses will be negative, all focal lengths will be negative, all powers will be negative, so equivalent focal length as well as equivalent power will be also negative, right। But if some of them will be positive means convex and some will be negative, then कोई मेरा फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, कोई निगेटिव होगा, कोई पावर पॉजिटिव होगा, कोई निगेटिव होगा। और इस तरह से इक्विवेलेंट पावर हम लोग निकालेंगे, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालेंगे, उसका साइन जो है
उसके कंस्टिट्यूएंट लेंसेस पर उसका पावर जो है, पावर का साइन जो है कंस्टिट्यूएंट लेंसेस पर डिपेंड करेगा। मीन्स फोकल लेंथ में बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, दैट डिपेंड्स ऑन focal length as well as power and focal length of constituent lenses. It means that by combining different lenses of different focal lengths, we can get focal length of we can get another lens of something focal length, another lens of something पावर। इस तरह से हम लोग एडजस्ट करके, पावर को एडजस्ट करके, फोकल लेंथ को एडजस्ट करके, मीन्स अलग अलग फोकल लेंथ, अलग अलग पावर का लेंस लेकर के हम लोग रिक्वायर्ड पावर, जितनी पावर का एक पेशेंट को ज़रूरत है, वी कैन गिव दैट वेरी लेंस। और यही किया जाता है। अगर जिसमें जितने भी तुम लोग इसमें जो होगे चश्मा लगाने वाले होगे, देखते होगे, अगर जो है दिखाने गए हो तो एक बार एक लेंस लगाता है, या पहले से अगर चश्मा लगाए हुए हैं तो एक लेंस पहले से लगा हुआ है, फिर उसमें एक और लेंस लगाएगा, कहेगा देखिए अब सही दिख रहा है, नहीं, फिर बदलेगा, अब सही दिख रहा है, हाँ सही दिख रहा है। इट मीन दैट नाउ योर पावर इज कम्बिनेशन ऑफ दिस टू, जो पहले से है और जो अब डाला गया, इन दोनों को मिला करके जो पावर होगा, नाउ यू हैव नीड ऑफ वन सिंगल लेंस ऑफ कम्बिनेशन ऑफ दिस टू, राइट। और डॉक्टर्स लोग यही करके जो है आई चेकअप करके पावर वाला लेंस, डिजायर्ड पावर वाला लेंस देते हैं, राइट। Now come here image of first lens, here image of first lens acts as object for the second lens, right। पहला लेंस का जो इमेज है वह सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो जरा सा देखिए, तो लेट अस सपोज इट इज योर कॉन्वेक्स लेंस, राइट, और यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज बना है 2 टाइम्स। आज सेकेंड लेंस, लेट अस सपोज सेकेंड लेंस जो है, लेट अस सपोज सेकेंड लेंस इज दिस। अब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, राइट। अगर इसका मैग्नीफिकेशन 2 था तो इसने 2 टाइम्स मैग्नीफाइड कर दिया। अगर जो है 1 मीटर का था तो इसने 2 मीटर बना दिया। और अगर यह लेंस जो है सेकेंड लेंस है, इसका मैग्नीफिकेशन 3 है तो इमेज को 3 गुना कर देगा, बिकॉज मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट। तो अगर